Hello, dear students. Hope that you are in good health and you are in good cheer. In previous lesson, we discussed how to write a paragraph. You have to attend as far as language skills are concerned. You have to attempt 4 questions in writing skills, and in each question, the question you are going to attempt, you have to write your answer about 80 to 100 words. In this context, we discussed paragraph writing, what the paragraph writing is, and how we should write a paragraph, and what are the important things we should keep in mind while drafting a paragraph. Now the next, our today's topic is report writing. Written reports are always communicated orally by some journalists or the news reporters, but written report is a very important document or a skill as far the record of the events is concerned. And it is question number 9. It's part number B. As I earlier told you, this is question paper. Question paper of 12th annual exam session 2019. And B part is, as a student editor, write a report for your school magazine about the annual sports day celebrated in your school. Now, if you don't have information how to write a report and what important things you have to keep in your mind while preparing and then drafting a report, you will beat about the bush in the examination. Anyway, we must come to the point. Reporting of an event or incident needs a great communication skill. अगर आप किसी इवेंट के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में, चाहे वो स्पोर्ट्स के मुतलिक ताल्लुक़ रखता हो या पॉलिटिक्स के मुतलिक या किसी स्कूल के मुतलिक, किसी इंसिडेंट के मुतलिक, तो इसमें क्या है कि इसमें एक आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल. बहुत से कॉरस्पॉन्डेंट्स जो बहुत से न्यूज़ पेपर्स के हैं, जो लीडिंग न्यूज़ पेपर्स हैं, उनके जो कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, इनका पूरी दुनिया में एक जाल बिछा हुआ है और ये अपने रिपोर्ट्स सेंड करते हैं अपने न्यूज़ एजेंसीज़ को. मुख्तलिफ वाक़ात, चाहे वो लोकल लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों, ऐसे वाक़ात के बारे में ये न्यूज़ भेजते हैं. और ये न्यूज़ दोनों, यानी ये तो एक स्पोकन रिपोर्ट भी होता है या ओरल रिपोर्ट भी होता है, और दूसरा जो रिटन रिपोर्ट होता है, चाहे वो ईमेल के ज़रिए भेजा जाए, व्हाट्सएप के ज़रिए, या आज जो भी कम्युनिकेशन हमें अवेलेबल है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो अवेलेबल हैं, इनके ज़रिए भेजा जाए, तो एक परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बन जाता है. तो हमारे स्टूडेंट्स को यही कहा जाता है कि आप
कि जो आपका स्कूल का मैगज़ीन है या आप जो भी ख़त किताबत स्कूल में होती है या एग्ज़ामिनेशन में आपको कहा जाता है कि आप किसी भी इवेंट के बारे में या किसी भी इंसिडेंट या एपिसोड के बारे में आप 100 वर्ड्स या उससे ज़्यादा या कम आप एक रिपोर्ट बनाएं। तो अब नाउ when we are going to compile a good report, what we should keep in your mind means the salient features of the report should we keep in mind. First, पहली चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो है first hand information about the incident, occurrence or event. First hand information means you must have a thorough information about the incident, why it happened, what were the causes behind it, how it occurred, what was the time when it occurred, which agencies were affected directly or directly or indirectly affected by it, समथिंग लाइक दैट। ये पहली चीज़ होती है। सेकंड जो इसमें हम देखते हैं, एंड वी ऑलवेज नरेशन ऑफ द इवेंट दैट एक्चुअली टुक प्लेस इन द immediate past forms the main part of the report. Narration, how you narrate the report, and it is वो माजी में है या माजी में इसके जो हाल है इसका यानी जो प्रेजेंट है उसको पास्ट के साथ क्या ताल्लुक़ था, यानी इसका पस मंज़र क्या था, ये भी आपको इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, समटाइम्स द बैकग्राउंड लीडिंग टू द हैपनिंग, जैसा कि मैंने बताया जो बैकग्राउंड होता है वो इस चीज़ को, इस वाक़े को या इस एपिसोड के रूनुमा होने में इसका गहरा ताल्लुक़ होता है। एंड it becomes, the background becomes the integral part of the report, main part of the report. ये इवेंट इस बैकग्राउंड या इस पस मंज़र के बगैर आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में मिसाल के तौर पर अगर कोई फिरकवाराना फसादात हुए हों, क्यों हुए हो, इसका पस मंज़र क्या है, किस बात पर हुए हों, आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक चीज़ जो रिपोर्ट राइटिंग में आपको बिल्कुल जिसका आपको ख्याल रखना है, ये है कि आप जब रिपोर्ट रखें ये सीधी सादे यानी इसमें सादा ज़बान इस्तेमाल की गई हो और ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पर मबनी हो। इसमें आप इधर उधर की बातें या वो चीज़ें जो बेसलेस हो, जिनका इनसे कोई ताल्लुक़ ना हो, आप इसमें नहीं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा है कि रिपोर्टिंग कैन इंक्लूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर सन, एवरीथिंग वॉट एवर एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड यू कैन रिपोर्ट अबाउट इट। जो भी चीज़ दुनिया में है इसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दे आर न्यू इवेंट्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, मैसेज, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज़, व्यूज़, बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी है इसके बारे में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं और रिपोर्ट लिख सकते हैं।
और एक सिंपल सा रिपोर्ट हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपाइल कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कि एज एन एग्ज़ाम्पल कैसे लिखा जाता है। मैं आपसे ये बता दूं, एक क्लैश होता है दो हमसायों के दरमियान, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, या किसी जगह कम्युनल राइट होते हैं, हिंदू मुस्लिम या सिख, किसी भी मज़हब के जो लोग हैं वो आपस में किसी वजह से या किसी कम्युनिटी कोई भी अकीदा रखने वाले जो लोग होते हैं वो आपस में किसी चीज़ पर लड़ पड़ते हैं, तो वहाँ कुछ दंगा फसाद होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम रिपोर्ट कंपाइल कर सकते हैं। या किसी जगह जो आग की वारदात होती है या और कोई वजह हो सकती है कि वाक़ा रूनमा हो सकता है कि जिसके बारे में हम रिपोर्ट तय कर सकते हैं। चलो आज के दिन हम क्या कहेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फायर, ए डिवास्टेटिंग फायर, इसके बारे में हम एक रिपोर्टिंग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन जो है ये आज का दिन 21 अगस्त 2020 है। जब आप रिपोर्ट कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप द्रुगमुला में हैं, पहले लिखेंगे आप द्रुगमुला, इसके बाद आप छोटा सा कामा डालेंगे। तो पहले लिखेंगे आप, सबसे पहले हेडिंग देंगे कि डिवास्टेटिंग फायर या फायर दैट टुक प्लेस इन ए कंजेस्टेड एरिया, और एनीवेयर नाम आप लिख सकते हैं, किसी जगह का भी हेडिंग दे दी। फिर आप जहाँ पर हैं, जहाँ पर आप खुद हैं वहाँ का नाम आप लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुर्गमुला हैं तो दुर्गमुला लिखेंगे, कामा डालेंगे। फिर आप डेट लिखेंगे, डेट है 21 अगस्त 2020, और कितने बजे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 11:30 बजे रिपोर्टिंग करते हैं, आप 11:30 बजे लिखेंगे, 11:30 AM। ये एक मॉर्निंग होती है, तो आप लिखेंगे उन्हें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हवा चल रही होती है या विंड है, ऑन ए विंडी मॉर्निंग ऑफ लिखेंगे। आपने पहले जब आप फायर के बारे में रिपोर्ट करेंगे तो आप सबसे पहली अलामत जब आप देखेंगे उसको तो वो स्मोक होगा, तो आप लिखेंगे विंडी, ऑन ए विंडी मॉर्निंग a huge cloud of smoke was seen rising from a shop in the left corner of the Jammu Kashmir Bank, Drogmula, right? फिर आप लिखेंगे जो ये पॉट है कहाँ पर, ये वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कितनी दुकान हैं, ज़्यादा हैं, कम हैं, इन दुकानों में क्या बेचा जाता है, किस चीज़ की दुकान है, कौन सी चीज़ बेची जाती है वहाँ, ये आप तय करेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस एरिया, और पार्ट नहीं लिखेंगे, एक्चुअली दिस एरिया comprises of a market which has a number of shops and godowns of plastic goods, etc. मिसाल के तौर पर वहाँ पर प्लास्टिक की चीज़ें जो बेची जाती हैं, वहाँ हमें ये तय करना है कि आखिर आग कैसे ज़्यादा
नुकसान करे, किस तरह से ज़्यादा नुकसान करेगी, जब वहाँ पर जो चीज़ें होगी, जो कंबस्टिबल ज़्यादा होगी, ईज़िली वो फायर कैच करेंगी। तो इसके बाद जब आग हुई तो आपको ये भी मद्देनज़र रखना है कि फौरी इत्तला जाती है फायर ब्रिगेड अमले को। तो आप ये लिखेंगे, तो फायर ब्रिगेड वाज गिवन एन अर्जेंट कॉल, soon a devastating fire engulfed the whole area, and आप ऐसा भी लिखेंगे तो many people were pouring buckets of water on the flames and struggling hard to put out the fire। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने बाल्टीनों में वो जो पानी लाया और आग के शोलों पर वो पानी फेंक रहे थे, ताकि जद्दोजहद कर रहे थे कि किसी तरह आग पर काबू पाया जाए। मगर हमने पहले ही कहा कि वहाँ स्ट्रॉन्ग विंड थी। स्ट्रॉन्ग विंड ओनली वर्सनड द सिचुएशन बाय द टाइम। तो फायर ब्रिगेड जिसको हमने कॉल की थी, फायर ब्रिगेड रीच्ड ऑलमोस्ट शॉप्स फायर इन फ्लैम्स। तो फायर ब्रिगेड आखिर तो वो उनके पास ऐसा मैकेनिज़्म होता है कि वो आग पर काबू पा ही लेते हैं। तो हम ये कहेंगे, तो फायरमैन डिड अ वंडरफुल जॉब, द फायर वाज कंप्लीटली पुट आउट इन 2 hours। A fireman say Mr. A or Mr. B who worked very courageously and bravely won the hearts of the people, and everybody appreciated him। He plunged into the fire and came out with a young lady on his shoulders, or a young boy on his shoulders, or a old man on his shoulders, or an old woman on his shoulders। It means that he has saved a life। The loss of the property through mind boggling couldn't be assessed so soon। यानी जो नुकसान हुआ था इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अभी पूरी तरह से इस एरिया का जायज़ा नहीं लिया गया था, किस दुकान में कितना माल जायदाद था। तो ऐसे ही हम रिपोर्ट तय कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मामला नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको अपने सेंटेंसेस पर कमांड होनी चाहिए, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस में ये आप अपनी रिपोर्ट लिखेंगे ताकि आप ज़्यादा गलतियां ना करें। और इस तरीके से हमारी जो ये रिपोर्ट है ये हमें ये एक सक्सेस रिपोर्ट बन जाएगी और इसमें मार्क्स भी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।